Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in today's video, that is day 19 of this playlist Data Structures and Algorithms, we are going to see our first advanced algorithm, that is depth first search. Okay, depth first search. Till now हमने previous video में graphs क्या होते हैं and graphs को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कोडिंग पार्ट में, ओके और ग्राफ्स का कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ में यूज है वो सब हमने देख लिया. ओके, नाउ वी विल डिग डीप इन ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर एंड वी विल सी अवर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च. बट बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो, लेट्स सी व्हाट न्यूटन स्कूल इज. So basically Newton School is an e-learning platform which provides you placement trainings and few very other important services. Okay, like Newton School firstly will train you for 6 months by teaching you front-end development and back-end development and other necessary techs. Okay, and then not only this, they will also get you placed in different companies like ThoughtWorks, Topper, 7-Eleven, Meesho, Deloitte, Dream11, Unacademy, and they have tie-up with almost 300 companies of India. So they will firstly train you as a full stack developer and then they will also get you placed. So if you want to know more about this program, just come to newtonschool.co, check their pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed after being a full stack developer in any of these companies, and minimum CTC they are providing you is of 5 lakh. So just come to newtonschool.co and check their pay after placement program. Another initiative which they have these days is Launchpad, under which they are providing you different courses of different techs absolutely for free. So you just need to come to newtonschool.co and sign up for free and just start learning. There you can get quizzes for practicing. There you have Newton School own IDE so that you can do programming section also here only in newtonschool.co, and you will also get certificate after completion of course. Okay, so it is also a good thing. You have different courses for different subjects like backend and frontend frameworks, different core subjects, competitive programming, data structures and algorithms, everything is for free. Now with these two programs, that is pay after placement and Launchpad initiative, they have also initiated a new program. Okay, that is they are providing you MS degree. Yes, you heard it true. Like suppose if you are some working professional, okay, and or if you are some busy student and you want to do MS from abroad, but you don't have time for that, or you can't afford it, like because it is very costly to do MS program from abroad, so you can do it from your home. Yes, you heard it right. Newton School is going one step forward to provide you MS degree. Okay, so to know more about this, you can just go to the link in the description, or you can just come to newtonschool.co and you can just know about this program. You can do this program from your home if you are too busy or you can't afford going abroad and pursue this MS degree program. Here is a foreign university which will provide you and teach you for one complete year, and after that you will get your certificate and degree, and that degree will be applicable anywhere in India and in abroad. Okay, so if you want to know more about this MS degree program, just go to the link in description and you will get to know everything about it. Now one more thing, if you haven't subscribed this YouTube channel Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this channel. I am posting one video every day so that we can complete data structures and algorithms as soon as possible. Until now we have already done this much in DSA. Now let's just begin our today's video, that is depth first search, or you can in short say it like DFS. Okay, DFS is the abbreviation of this, depth first search. Now it is kind of a algorithm. Okay, तो अभी तक हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उस पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो सब हमने जान लिया. अब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ एल्गोरिदम्स आती हैं. ठीक है, जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स
का यूज करके वो एल्गोरिदम्स कोई बहुत अच्छे टास्क या फिर चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एल्गोरिदम इज DFS. You can say that it is the basic building block of all other algorithms of graphs. Okay, so you have mainly heard about DFS and BFS, and you can say कि ये जो दो एल्गोरिदम्स हैं ये ग्राफ्स के ऊपर जितनी भी अदर एल्गोरिदम्स हैं उन सबका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी DFS वेरी स्पेसिफिकली एंड वेरी केयरफुली. ओके, सो नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है? ये बेसिकली एक ट्रैवर्सल टेक्निक है एक ग्राफ की. ओके, लाइक ट्रैवर्सल मीन्स लाइक दिस इज योर ग्राफ. ओके, इस ग्राफ में तुम कहां से स्टार्ट करो और फिर इसमें ट्रैवर्स कैसे करो. लाइक इस नोड के बाद तुम कहां पे जाओगे, फिर कहां पे जाओगे, फिर इस नोड से कहां पे जाओगे, फिर कहां जाओगे. तो बेसिकली ये एक ट्रैवर्सल टेक्निक है. ओके, एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और ये कैसे होती है ये अब हम देखना शुरू करते हैं. ठीक है, सो DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, this is your complete algorithm. But before this, before reading these lines and complete algorithm, let's just see what DFS is. Suppose this is your graph. This is your graph. Okay, you have like different nodes in it. These are your node 1 2 3 4 5 6 7. Total number of nodes 7. And total number of edges can be 1 2 3 4 5 6 7. Total number of edges are also 7. Fine. Now as name suggests, DFS is depth first search, or you can say depth first traversal. You can also say it like depth first traversal. Okay, depth first, ये जो चीज बोल रहा है इसके ऊपर फोकस करो कि डेप्थ को प्रायोरिटी देनी है तुम्हें. ठीक है, इट मीन्स सिंपली इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड, सपोज दिस इज योर बिगनिंग नोड. ठीक है, तुम्हें 1 से अपना ट्रैवर्सल शुरू करना था और यू कैन से दैट 1 इज योर आर्बिट्री रूट. तुमने अपने मन से सपोज कर लिया. ठीक है, 1 इज योर आर्बिट्री रूट ऑफ द ग्राफ मीन्स ये तुम्हारा सुपीरियर रूट है. ठीक है, यहां से तुम अपना ट्रैवर्सल शुरू कर रहे हो. नाउ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डेप्थ. ओके, तो व्हाट यू विल डू इज तुम 1 के चाइल्ड नोड्स देखोगे. ठीक है, चाइल्ड नोड मीन्स अगर 1 तुम्हारा पेरेंट नोड है. ठीक है, अब कुछ और एब्रिविएशंस यहां पे आएंगे, जैसे मैंने पिछली बार नोड्स और एजेस बताया था, अब यहां पे एक आएगा पेरेंट नोड सिंपली. ठीक है, सेकेंड विल बी योर चाइल्ड नोड. चाइल्ड नोड आप सिंपली समझ सकते हो जो भी पेरेंट नोड से एसोसिएटेड नोड्स होंगे वो सारे उस पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड होंगे. ठीक है, नाउ थर्ड कैन बी विजिटेड एंड अनविजिटेड नोड. ये चीज इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि ट्रैवर्सल अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और उस करेंट नोड को आप विजिट कर चुके हो during your traversal, then that node will be visited node, otherwise that node will be unvisited node. ठीक है, तो ये कुछ abbreviations हैं जो मैं यूज करूंगा. सपोज दिस इज योर मेन पेरेंट नोड जहां से तुमने अपना ट्रैवर्सल शुरू किया. ठीक, अब तुम डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल कर रहे हो, तो व्हाट यू विल सिंपली डू इज यू विल चेक ऑल इट्स चाइल्ड नोड्स. ठीक है, फर्स्ट के चाइल्ड नोड्स कौन कौन से हैं, 2 and 6. यू विल सिंपली सी कौन सा नोड इनमें से अनविजिटेड है. कोई भी तुम्हें अनविजिटेड नोड मिला जो कि 2, राइट नाउ 2 अनविजिटेड है, मैंने क्या किया 2 में आया. ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा 2 के चाइल्ड नोड्स देखूंगा. ठीक है, 2 के चाइल्ड नोड्स देखे मैंने, 2 के चाइल्ड नोड्स आर 3 and 4. फिर मैं सिंपली 2 के चाइल्ड नोड्स देखूंगा कौन से अनविजिटेड है. मैंने देखा 3 मुझे सबसे पहले मिला अनविजिटेड है, मैं 3 पे गया. ओके, अब मैं यहां से अगर मैं अपना ट्रैवर्सल भी बनाता जाऊं तो मैं फर्स्ट यहां आया. ठीक है, मैं यहां पे लिखता जाता हूं. सबसे पहले 1 ट्रैवर्स किया मैंने, फिर 2, फिर 2 के बाद मैं 3 में आया. ठीक है, अब मैं 3 पे आया. 3 पे मैंने देखे 3 के चाइल्ड नोड्स एक भी नहीं है. ओके, सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल बैक ट्रैक.
मैं 3 पे आया, 3 के बाद मुझे एक भी चाइल्ड नोड्स नहीं मिले, मैंने 3 से सिंपली बैक ट्रैक किया और मैं वापस उसके पेरेंट में आ गया, दैट इज 2। अब मैं वापस 2 में देखूंगा, 2 में मुझे एक अनविजिटेड नोड मिला, दैट इज 4। मैं फिर उसके बाद कहाँ जाऊंगा, 4 में। ठीक, मैं 4 में आया, 4 में मैंने उसके चाइल्ड नोड्स देखे। 4 के चाइल्ड नोड्स कौन से हैं, 5 और 2। बट 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, ओके, क्योंकि 2 से तो तुम आ ही रहे हो, ओके, 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, सो यू विल सिंपली गो टू 5। ओके, मैं 4 से 5 में आ गया। ठीक, एक बार और लिख लेता हूं, 3 से मैं 4 में गया, 4 से मैं 5 में आया। ठीक, 5 से अगेन उसके चाइल्ड नोड्स, ओके, अब मैं लिख नहीं रहा बार बार, 5 में हो तुम, 5 से चाइल्ड नोड्स देखो, दैट इज 4 एंड 6, ओके, 4 is already visited, so you will simply go to 6। 6 में आए, ओके, 6 से तुमने क्या किया, 6 के चाइल्ड नोड्स देखे, that will be 1, 5, if you mark it like 1, 5 and 7। 1 and 5 are already visited, so simply you will go to 7, okay, so 1 to 7। now अब मैं यहाँ पे लिख लूँ अगर, तो मैं 5 से 6 में गया, 6 से 7 में गया, ओके, अब मैं वापस 7 में, मुझे एक भी चाइल्ड्स नहीं मिले, आई विल बैक ट्रैक टू 6, ओके, 6 में मैंने देखा एक भी मुझे अनविजिटेड चाइल्ड नहीं मिले, आई विल बैक ट्रैक टू 5। 5 में मैं जैसे ही आया, 5 में मैंने देखा एक भी अनविजिटेड चाइल्ड नहीं मिले, दैट बिकॉज 4 इज ऑलरेडी विजिटेड, 6 इज ऑलरेडी विजिटेड, ओके, आई विल बैक ट्रैक टू 4। 4 में मैं जैसे ही आया, 4 में भी मुझे एक भी अनविजिटेड चाइल्ड नहीं मिले, आई विल बैक ट्रैक टू 2 एंड सिमिलरली आई विल बैक ट्रैक टू 1, ओके। एज सून एज जैसे ही मैं अपने रूट नोड में दोबारा आ गया, यहां पे मेरा क्या होगा, डीएफएस एंड हो जाएगा, ओके। और यू कैन से कि तुमने सारे के सारे नोड्स ट्रैवर्स कर लिए, ठीक है, तुम यहां पे अपने ट्रैवर्सल में देखो, तुम्हें ऑल 7 नोड्स यहां पे मिल चुके हैं, इट मीन्स तुमने अपना डीएफएस ट्रैवर्सल कंप्लीट कर लिया, फाइन। नाउ ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो गया, ठीक है, कि हमने तो पढ़ा था कि डेप्थ फॉर सर्च में डेप्थ में जाते जाना है, ठीक है। अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हम सेम चीज ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, 1 में थे, 1 की डेप्थ, सपोज दिस इज योर पेरेंट, ओके, उसकी डेप्थ क्या होगी, उसके चाइल्ड होंगे, सपोज दीज आर योर चाइल्ड्स, तुम उसमें चाइल्ड में गए, फिर नाउ तुम इस चाइल्ड में हो, तो अब तुम्हारा ये पेरेंट है, ठीक है, इसकी डेप्थ क्या होगी, इसके चाइल्ड्स, तुम उस चाइल्ड में आए, तुम यहां पे आ गए, ठीक है, अब यहां से ये पेरेंट बन गया, इसके चाइल्ड्स में आओगे, तो सेम थिंग वी आर डूइंग इन डीएफएस। हम पहले डेप्थ में ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, और जैसे ही हमें डेप्थ में और मोर डेप्थ नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि इस करेंट नोड के लिए जिस पे अभी हम हैं, अनविजिटेड नोड्स खत्म हो गए, वी विल अगेन बैक ट्रैक टू इट्स पेरेंट एंड वी विल अगेन चेक कि यहाँ पे कोई अनविजिटेड नोड है, अगर है तो वी विल गो टू दैट, अगर नहीं है वी विल अगेन बैक ट्रैक टू इट्स पेरेंट एंड वी विल अगेन बैक ट्रैक टू इट्स पेरेंट, ओके। सो सिंपल सा डीएफएस का फंडा है, ठीक है। इन डीएफएस वी गो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड नोड, इट्स चाइल्ड नोड, इट्स चाइल्ड नोड, ओके, एंड इफ लेट मी क्लियर दिस बात, ओके, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। इन डीएफएस वी start from arbitrary parent, we go it to its child, okay, then we go it to its child, then we again go to its child, ठीक है। अगेन अगर C के मेरे पास फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, we will backtrack, okay, and we will go to its unvisited child, ठीक है। फिर अगर इसके चाइल्ड्स हैं तो we will go to it, अगर इसके चाइल्ड्स नहीं है तो we will again backtrack, okay, एंड आई विल अगेन चेक, इसके कोई चाइल्ड्स नहीं है, आई विल अगेन बैक ट्रैक एंड इसके फर्दर दूसरे चाइल्ड्स में जाऊंगा मैं, ठीक है। एंड ऐसे ही सारे के सारे चाइल्ड्स विजिट करके एंड में मैं अपने आर्बिट्री पेरेंट में आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी डीएफएस एल्गोरिथम, सिंपल सी एल्गोरिथम है, एज सून एज प्रैक्टिस में आएगी, ठीक है, हम डीएफएस का 1-2 बार कोड लिखेंगे और सिंपली होगा क्या, डीएफएस का कोड लिखने के बाद हमारे प्रैक्टिस में आएगी, फिर उससे जो भी और ओरिजिनेटेड एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट
मोर इम्पॉर्टेंट एंड गुड एल्गोरिदम्स, हम वो वाली में DFS यूज़ करेंगे। ओके, तो DFS का यूज़ और BFS का यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो DFS को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नाउ सपोज अब मुझे यहाँ से DFS ट्रैवर्सल के टाइम पे DFS के नोट्स प्रिंट भी करने, लाइक कौन कौन से न्यू नोट्स मैं ट्रैवर्स करता जा रहा हूँ, तो मुझे वो नोट्स प्रिंट भी करने होंगे। लाइक मैंने अभी DFS ट्रैवर्सल प्रिंट किया था 1 2 3 4 5 6 7। ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक विजिटेड एरे बना लेता हूँ। ओके, लाइक मैं क्या कर रहा था, मैंने ग्राफ तो बना लिया था, ठीक है। मैंने ग्राफ बना लिया था ऑलरेडी। अब मैं बोल क्या रहा था कि यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस नोड को विजिट कर लिया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने पेरेंट को विजिट कर लिया, और मैं विजिटेड एरे में सिंपली क्या कर दूंगा, इसको मार्क कर दूंगा लाइक 1। ओके, विजिटेड ऑफ p इज इक्वल्स टू 1। नाउ इट विल इंडिकेट मी कि मैंने करंट नोड p को ऑलरेडी विजिट कर लिया, ठीक है। तो मैं उसको अपने DFS ट्रैवर्सल में दोबारा प्रिंट ना करूँ। अगेन आई विल कम टू दिस its child and I will mark it visited of child as 1, ठीक है, and I will write it here in DFS traversal। तो सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे मैं कोई एक नए नोड में आ रहा हूँ जो कि अनविजिटेड है, मैं उसको DFS ट्रैवर्सल में प्रिंट करूंगा, और प्रिंट करने के बाद मैं उसको DFS ट्रैवर्सल में विजिटेड एरे में मार्क कर दूंगा सिंपली। ओके, और विजिटेड एरे में मार्क करने के बाद मैं सिंपली उस करंट नोड के डिफरेंट चाइल्ड्स चेक करूंगा, और कोई भी मुझे अगर अनविजिटेड चाइल्ड मिला, मैं उसके लिए अगेन DFS कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यू कैन से कि यू कैन इम्प्लीमेंट DFS यूजिंग रिकर्शन। ओके, अब मेन एल्गोरिदम यहां से पढ़ते हैं। क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट टेक्स इंडेक्स ऑफ द नोड एंड विजिटेड एरे। ओके, तो हमें दो चीजें चाहिए, इंडेक्स ऑफ द नोड, हमें जहां से भी DFS शुरू करना है, एंड सेकेंड थिंग ए विजिटेड एरे। ओके, जिसमें हम अपने सारे नोड्स का विजिटेड एंड अनविजिटेड मार्क करेंगे। नाउ मार्क द करेंट नोड एज विजिटेड एंड प्रिंट द नोड। तो करेंट नोड को मैं मार्क करूंगा विजिटेड और उसको प्रिंट करूंगा, एंड सिंपली आई विल ट्रैवर्स ऑल द एडजेसेंट एंड अनमार्क्ड नोड्स। ओके, जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, दैट मीन्स चाइल्ड नोड्स, उसमें अनमार्क्ड नोड्स को मैं सिंपली ट्रैवर्स करूंगा और कॉल द रिकर्सिव फंक्शन विद द इंडेक्स ऑफ एडजेसेंट नोड। तो सिंपल सी एल्गोरिथम है। अब मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं and you will get it. Okay, suppose I have a graph और मेरे पास उसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ये एडजेसेंसी लिस्ट है मेरी, जहां पे n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स हैं इन योर ग्राफ। ओके, एंड यू कैन से कि वेक्टर जो एडजेसेंसी लिस्ट है तुम्हारी, उसमें तुम्हारा ग्राफ ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट DFS फंक्शन, ठीक है। DFS फंक्शन में तुम्हें दो चीज चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज योर नोड, पेरेंट नोड, ठीक है। फॉर इजी केस वी विल टेक पेरेंट नोड एज 1, ठीक है, फाइन। एंड सेकेंड इज योर विजिटेड एरे। विजिटेड एरे में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, सिंपली योर टोटल नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों चीज को पास कर दूं यहां पे, दैट इज योर पेरेंट, ओके, योर विजिटेड एरे सिंपली, और यू कैन यूज इट लाइक वेक्टर, विजिटेड वेक्टर ऑल्सो, ठीक है। और इनिशियलाइज ऑल द नोड्स इनिशियली नॉन जीरो, जीरो, सॉरी, वाई, क्योंकि इनिशियली मेरे सारे के सारे नोड्स क्या हैं, अनविजिटेड है, ठीक। अब मुझे DFS लिखना है, मैं DFS ऑफ करंट पेरेंट के लिए कॉल कर रहा हूं, ठीक है, जो भी मेरा पेरेंट है, मैं जहां से DFS शुरू कर रहा हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको विजिटेड कर दूंगा। मैंने उसको 1 मार्क कर दिया, ठीक है, और 1 मार्क करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली उसको प्रिंट करना है, क्योंकि मैं उस करंट नोड पे आया हूं अभी, ठीक है। प्रिंट करने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में, या यू कैन से दैट यू हैव टू ट्रैवर्स, सपोज दिस वाज योर ग्राफ,
ठीक है, तुम इस नोड में थे, तुमने इसको प्रिंट कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया। अब तुम सिंपली क्या करोगे, इसके चाइल्ड्स को चेक करना है। ओके, चाइल्ड मीन्स एडजेसेंसी लिस्ट इस नोड की, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट मीन्स इस नोड से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं। सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल यूज, समझ में आई ये चीज, ऑटो रेंज रेंज बेस्ड फॉर लूप है, ठीक है, ऑटो का यूज करके। अब मैं सिंपली जितने भी नोड्स मेरे PAR दैट इज पेरेंट नोड से कनेक्टेड है, मैं उन सबको चेक करूंगा। और अगर कोई भी नोड मुझे मिला, ठीक है, जो कि विजिटेड 0 है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉल DFS ऑफ दैट नोड एंड माई विजिटेड वेक्टर। सिंपल सा मेरा DFS एल्गोरिथम है, एंड दिस फंक्शन विल सिंपली प्रिंट माई DFS पाथ ट्रैवर्सल। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड इसको कंप्लीट करके एक ग्राफ का इनपुट लो, और ये तुम्हारी असाइनमेंट है कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी सम एप्लीकेशंस ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे कौन कौन से एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं। वी कैन डिटेक्ट साइकिल इन ग्राफ यूजिंग DFS। तो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और इसकी एल्गोरिदम भी अभी हम पढ़ेंगे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये, कि किसी भी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। लाइक इस ग्राफ में तुम्हारी ये साइकिल प्रेजेंट है, ये हम DFS से यूज कर सकते हैं। यूजिंग DFS वी कैन फाइंड पाथ बिटवीन टू गिवन वर्टिसेस दैट इज U and V। सो इट इज ट्रू दैट इफ सपोज दिस वर्टिस इज U एंड ये वर्टेक्स V है, तो वी कैन डिटेक्ट अ पाथ फ्रॉम U and V। ओके, DFS का यूज करके। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है फॉर ग्राफ्स। ओके, तो जब हम इसका वीडियो देखेंगे तब हम DFS एल्गोरिदम से इसको इम्प्लीमेंट करना भी देखेंगे, एंड ये वहाँ पे भी DFS यूज आता है, ठीक है। यूजिंग DFS वी कैन फाइंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। फाइन, तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सपोज दिस कैन ऑल्सो बी योर ग्राफ, ठीक है। ये कंप्लीटली एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, जहां पे ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बट इनसाइड कंपोनेंट 1 ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो यूजिंग DFS वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और ये सारी कुछ एप्लीकेशंस थी DFS की, जिनको हम डिटेल्ड में फर्दर वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लस अगेन go to newtonschool.co, check their pay after placement program, check their launchpad initiative, and check their MS degree program. And if you want to enroll in any of these, just apply now for free and fill the Google form, okay, and you will automatically get some expertise call, and they will explain you everything about it. So don't worry, if you want to take it, you will just take it, okay, and if you don't want to take any of these courses, just refuse them, okay. So just one time check these programs, and it can help you in your placements, in your learning purpose. And if you want to pursue some MS degree program from abroad, so it can also, Newton School can also do that, okay. So thank you guys for watching this video. Again, subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, if you haven't done yet. Thank you guys for watching.